Good morning to all. Today we are going to discuss 3 points. Number one, payback period. Number two, discounted payback period. And number three, accounting rate of return. In this chapter, we are discussing capital budgeting decision. In this chapter, there are 6 points. Number one, NPV. Second, IRR. Third, that is uh, third is that we already discussed in last time, that is PI, profitability index. Clear? So till last two lecture we discussed, last 2-3 lecture we discussed NPV, IRR and profitability index. Now today we're going to discuss 3 more points, that is payback period, discounted payback period and accounting rate of return. Generally पहले जो हमने 3 डिस्कस किए वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज एनपीवी, आईआरआर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. ये पेबैक पीरियड आता है कभी कभी लेकिन इजी है, ठीक है, बाकी ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं. क्लियर? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 सम्स अबाउट पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एंड that is ARR, accounting rate of return. So for attending this lecture you require to have a calculator with you, because without calculator you cannot understand how I put the value in this slide. Clear? So please keep calculator with you when we are calculating this sum. Now this is your example number 14 in your book. I am Pandey. Consider the following projects. So here there are 4 projects: projects A, project B, project C and project D. Now for all 4 projects, here value is given, that is for project A we are investing 1000, minus 1000 means we are investing rupees 1000, and for this 1000 will get 600 after 1 year, 200 after 2nd year, 200 after 3rd year and 1000 after and the 4th year. Same as for project B we are investing 1000 rupees, but will get 200, 200, 600 and 1000 respectively for 4 years. In project C we are investing 1300 and will get 100 rupees, 100 rupees, 100 rupees and 1600 rupees respectively for next 4 years. In project D we are investing same 1300, will get nothing for first 2 year, 2 साल के लिए हमको कुछ नहीं मिलता है, but in the year 3rd and 4th we get 300 and 1600 respectively. So this is the 4 projects which is given in the sum. Now what we have to calculate? A, calculate the payback period for each project. Each project, हर एक project के लिए आपको क्या गिनना है? Payback period. Second, if standard payback period is 2 year, इसको थोड़ा याद भी रखना. If standard payback period is 2 year, which project will you select? Then will your answer is different in standard payback period of 3 years? आपका आंसर डिफर होगा अगर standard payback period 3 year है तो. ठीक है, समझाते ये क्या है. Then third one, if the cost of capital is 10%, cost of capital means R is equal to 10%, compute the discounted payback period. We have to compute the discounted payback period. So here we have to calculate 2 things: payback period, first A, and C, discounted payback period. So there is a difference between payback period and discounted payback period. वो क्या है वो हम discuss later on. Now what is payback period? First of all, सो पेबैक पीरियड का सिंपल मतलब ये होता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने साल में हमको वापस मिल जाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, पेबैक पीरियड का मतलब होता है ऐसा पीरियड कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट हमको कितने साल में या कितने समय में हमको वापस मिल जाएगा. ठीक है, वो जो ईयर है, वो जो पीरियड है उसको बोलते हैं पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड मतलब जो हमने पे किया है वो बैक कब तक आ जाएगा. क्लियर? और हमको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी समझना है. चलो समझते हैं पेबैक पीरियड. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ द फॉर्मूला ऑफ पेबैक पीरियड. द पेबैक पीरियड फॉर्मूला इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट divided by annual cash inflow. Again I am repeating, payback period is equal to initial investment divided by annual cash inflow. देखो मैंने सेम टेबल, ये जो हमने अभी टेबल आपको बुक में दिया है, सेम टू सेम टेबल मैंने यहाँ पे पुट किया है. ठीक है, समझने के लिए कि आपको समझ में आए.
यही टेबल है जो सब में आपको दिया है, यही सेम टू सेम टेबल आई पुट हियर। नाउ लेट्स कैलकुलेट पेबैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट ए। आपके पास कैलकुलेटर रखना जरूरी है, मैं बोलूं टोटल वो आपको पता चलना चाहिए कि कितना टोटल हुआ। क्लियर? अभी तो इजी है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो देखते हैं। नाउ फॉर प्रोजेक्ट ए व्हाट इज पेबैक पीरियड? चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो फॉर प्रोजेक्ट ए व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? 1000। सो ऊपर रख दो 1000 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। इनफ्लो मतलब कितना पैसा मिलता है। सिंपल है, देखो हमने कितना पैसे का इन्वेस्टमेंट किया? 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। अभी एक साल के बाद वो प्रोजेक्ट में से कितना मिलेगा? 600। दूसरे साल में 200, तीसरे साल में 200, टोटल करो तो 6000, सॉरी 600, 200, 200, 1000 हो गया। 1000 तो डोंट ऑन ऑडियो प्लीज। सो 1000 हो गया। तो 1000 मतलब हमने जो 1000 इन्वेस्टमेंट किया है वो पहले साल में हमको 600 मिलेगा, दूसरे साल में 200, मतलब 2 साल में 800 मिल गया, तीसरे साल में 200, मतलब 3 साल में आपने जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। सो योर पेबैक पीरियड इज 3 ईयर। सिंपल। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको कितने साल में वापस मिलता है, दैट इज कॉल्ड पेबैक पीरियड। ठीक है? एक और सम समझते हैं नीचे, प्रोजेक्ट बी। चलो प्रोजेक्ट बी समझो। आपको ऐसे नीचे लिखना है, इनफ्लो नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो चलो प्रोजेक्ट बी, बी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 1000 डिवाइडेड बाय, चलो पहले साल कितना मिलता है? 200, तो यहाँ पे 200, दूसरे साल में 200 तो प्लस 200, तीसरे साल में 600 तो 600 हो गया। 600, 200, 200, 1000 हो गया ना। हमने 1000 इन्वेस्ट किया था और कितने साल में 1000 रुपीज मिल जाते हैं? 3 इयर्स। तो योर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज 3 इयर्स। मतलब प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको 3 साल में पैसे वापस मिल जाएगा। सिंपल है, ये सिंपल पेबैक पीरियड है। ठीक है? प्रोजेक्ट सी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझो। अगर ये समझ में आया तो ही डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड समझ में आएगा। देखो क्या है ये प्रोजेक्ट सी, कितना इन्वेस्टमेंट है? 1300। सो 1300 डिवाइडेड बाय पहले साल में कितना मिलता है? 100, दूसरे साल में 100, तीसरे साल में 100, तो 100, 100, 100, मतलब मिनिमम इन तीनों का टोटल करो 300, तीनों का टोटल करो 300। चलो हमको कितना मिलने चाहिए था? 1300। ध्यान से देखना, हमने 1300 इन्वेस्ट किया है तो 1300 टोटल होना चाहिए। तो 100, 100, 100, 300 और प्लस अगर 1600 करने जाऊंगा तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग। आप बोलेंगे कि सर पेबैक पीरियड 4 साल नहीं हो सकता। नहीं होगा, एग्जैक्ट 4 साल नहीं होगा। देखो कैसे, अगेन आई एम रिपीटिंग। चलो पहले साल में आपको 100 मिलता है, दूसरे साल में 100, तीसरे साल में भी 100, तो 100, 100, 100, 300 और चौथे साल में 1600, मतलब ये तो 1900 हो गया ना, ज्यादा हो गया। तो हमको तो कितना चाहिए? हमारा इन्वेस्टमेंट है 1300। क्लियर? कितना है? 1300। तो देखो 100, 100, 100, मतलब कितने साल हुआ? 100, 100, 100, 3 साल तो हो गए ना। हमको पैसे वापस लेने में कितने साल होंगे? 3 इयर्स। अभी ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। चलो हमको कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 1300 किया था। अभी कितना पैसा हमको मिला 3 साल में? 100, 100, 100, कितना पैसा मिला? 300। मिलना कितना चाहिए था? 1300। मिला कितना 3 साल में? 300। तो अभी कितना मिलना बाकी है? 1000। तो यहाँ पे देखो 1000 लिखना है, 1000 जितना बाकी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1300 हमारा इन्वेस्टमेंट था, हमको 3 साल में कितना मिला? 100, 100, 100, तो 300 मिला। तो 1300 में से 300 मिला, तो अभी कितना मिलना चाहिए था? बाकी कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय लास्ट साल में पेमेंट कितना मिल रहा है वो डिवाइड करना है 1600। सो यू हैव टू डिवाइड बाय 1600 इंटू 12। 12 क्यों कर रहे हैं इंटू? क्योंकि हमको मंथ में कन्वर्ट करना है, मंथ मिलेंगे। तो इसका आप कैलकुलेशन करेंगे ना, 1000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 12, नियर बाय एग्जैक्ट कितने मंथ आएगा? 8 मंथ। मतलब आपका पीरियड है 3 इयर्स एंड 8 मंथ। 3 साल और 8 महीने में आपको पैसे वापस मिलेंगे। अब तक जो 2 सम थे उसमें एग्जैक्ट पेबैक पीरियड आ रहा था क्योंकि इजी था। इसमें एग्जैक्ट नहीं है इसलिए मंथ में भी आएगा। चलो प्रोजेक्ट डी को समझो। प्रोजेक्ट डी, चलो प्रोजेक्ट डी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1300, तो 1300 रख दिया। पहले साल में क्या मिल रहा है? 0, तो 0 प्लस 300, तो 3 साल का मिला के आपको मिल रहा है 300। नीचे लिखा है देखो 300।
तो आपका पेबैक पीरियड 3 ईयर तो हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? 3 ईयर हो गया ना, 3 साल मिनिमम, 3 साल तो हो गई आपको पैसे वापस लेने में, लेकिन ऊपर और कितने मंथ्स होते हैं? तो 3 इयर्स। क्लियर? चलो अभी अब तक आपको 3 साल में कितने पैसे मिले? 300। आपको चाहिए थे कितने? 1300। तो 1300 में से 300 माइनस करो, कितने अभी मिलने बाकी है? 1000 डिवाइडेड बाय लास्ट में कितना इनफ्लो है? 1600। सेम टू सेम है लास्ट सम में, इनटू 12। तो इसमें भी 3 ईयर और कितने मंथ आएगा? 8 मंथ्स। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट पेबैक पीरियड। ठीक है? और बुक में कोई सम नहीं है, इसलिए मैं आपको और नहीं समझा सकता, बट इजी है कि कितने साल में आपको पैसे वापस मिलते हैं। पहले 2 सम ए बी में ऐसा था कि एग्जैक्ट 3 सम 3 ईयर में 1000 हो जाता था, इसलिए एग्जैक्ट 3 इयर्स आता था। यहाँ पे 3 इयर्स और 8 मंथ आता है 2 में, प्रोजेक्ट सी एंड प्रोजेक्ट डी। ठीक है? सो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? ए, कैलकुलेट द पेबैक पीरियड ऑफ द ईच प्रोजेक्ट। नाउ बी, if the standard payback period is 2 year, मतलब स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड 2 ईयर है, मतलब मैनेजमेंट चाहता है कि 2 साल में आपको पैसे वापस मिलने चाहिए। ये स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि अभी पेबैक में कोई रूल नहीं है कि कितना होना चाहिए, बट कंपनी ने डिसाइड किया है कि 2 साल में स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड है, 2 साल में पैसे वापस मिलने चाहिए। तो विच प्रोजेक्ट विल यू सिलेक्ट? देखो चलो, हमारे पास 4 प्रोजेक्ट है, कंपनी ने कितना स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड डिसाइड किया है? 2 साल। 2 साल में पैसे वापस मिलने चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड। ठीक है? कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया है कि ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो जिसमें 2 साल में पैसे वापस मिल जाए। चलो, हमारे चारों प्रोजेक्ट में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 2 साल में पैसे वापस मिलते हैं? एक भी नहीं। तो अगर स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड 2 इयर्स है तो कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। विच प्रोजेक्ट विल यू सिलेक्ट? नो वन प्रोजेक्ट विल सिलेक्ट। लेकिन नीचे एक और क्वेश्चन पूछा है, विल योर आंसर इज डिफरेंट इफ स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड इज 3 ईयर? आंसर आपका डिफर होगा अगर स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड कितना है? 3 साल। अभी कंपनी चाहती है कि भी 3 साल लगेंगे पैसे वापस आने में तो चलेगा, तो अभी कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्ट होंगे? तो देखो, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड कितना है? 3 इयर्स है। ठीक है? तो अगर 3 स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड है तो प्रोजेक्ट ए बी सिलेक्ट होगा। ठीक है? 2 स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड है 2 साल, तो कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 साल तो किसी का भी नहीं लग रहा है, 2 से ज्यादा ही लग रहा है। क्लियर? सो दिस वे, सो वी ऑलरेडी कैलकुलेट द फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या था? स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड। नाउ थर्ड वन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। बी कैलकुलेटर विथ यू, बिकॉज इसमें कैलकुलेटर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है? इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? R is given. Compute the discounted payback period. अभी मैं आपको ये समझा दूं, for each project what is discounted payback period? Discounted payback period का मतलब वो ये बता रहे हैं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू गिनना है और वो वैल्यू लेनी है। हमेशा एक चीज याद रखो, कोई बोले डिस्काउंटेड वैल्यू लाओ, हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती है? हम रियलिटी में देखें तो व्हाट इज डिस्काउंटेड वैल्यू? तो कोई बोले कि भी हमने कुछ क्लोथ्स परचेस किए तो हमको डिस्काउंटेड वैल्यू दो। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब होता है डिस्काउंट माइनस करने के बाद। सपोज हमने 100 रुपीज का कोई चीज खरीदा है, उसमें 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू कितना आएगा? 90 रुपीज। मतलब हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू कम होता है। नाउ इन फिनेंस लैंग्वेज, अगर फिनेंस की भाषा में समझे तो डिस्काउंटेड का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू है उससे प्रेजेंट वैल्यू हमेशा क्या होती है? कम। फ्यूचर वैल्यू से हमेशा प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? कम। इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का मतलब होता है आपको प्रेजेंट वैल्यू पहले गिनना है और वो प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर आपको पेबैक पीरियड गिनना है। क्लियर? अब तक हमने जो ए में गिना वो सिंपल पेबैक पीरियड था, सिंपल, जो दिया है वही ले लो। लेकिन अभी हम जो गिनने वाले हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, उसमें पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू लाना है। देखो ये एक टेबल है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का, थोड़ा हम स्पीड करेंगे बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। चलो, हमारे पास कितने प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी। प्रोजेक्ट ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000। इनफ्लो कितना था? 600, 200, 200 एंड 1000। प्रोजेक्ट बी का इनफ्लो कितना था? 200, 200, 600 एंड 1000। प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट सेम समय जो हमने किया 14 वाला, इन्वेस्टमेंट 1300 था इन दोनों में, याद है ना? 1300 1300। और
प्रोजेक्ट सी में इनफ्लो कितना था 100 100 100 एंड 1600। प्रोजेक्ट डी में इनफ्लो कितना था, पहले 2 साल 0 था, फिर थर्ड ईयर 300 और लास्ट साल में 600। जो अभी हमने सम किया वही सम है, बट अभी हम सबका प्रेजेंट वैल्यू गिन रहे हैं। देखो हमारा आर कितना है 10%, तो आपके पास टेबल होगा एग्जाम में, वो 10% देख के आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ला सकते हो। हमने बहुत बार 10% यूज किया है, यही ये चैप्टर में, ठीक है। चलो पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आएगा 9091। अगर आपके पास टेबल है तो आप देख सकते हो 0.8264, 0.7513, 0.6830, ये चार आएगा अगर आप आर देखेंगे 10% में। क्लियर। चलो अभी प्रोजेक्ट ए का मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी का प्रोजेक्ट का नहीं समझाऊंगा क्योंकि सेम टू सेम है। समझो प्रोजेक्ट ए, चलो कितना एक साल के बाद कितना मिल रहा था 600 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आज जो हमको एक साल के बाद मिल रहा है 600, वो आज उसका वैल्यू कितना है 545, ये प्रेजेंट वैल्यू है। फिर एक 2 साल के बाद हमको 200 मिलने वाला था, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसका आज का वैल्यू है 165। 3 साल के बाद 200 मिलने वाला था, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आज का वैल्यू उसका 150 है। और चौथे साल में हमको जो 1000 मिलने वाला था उसको 0.6830 से मल्टीप्लाई करो, उसका आज का वैल्यू है 683। मतलब ये जो इनफ्लो दिए थे 4 साल के, उसके हमने क्या फाइंड कर दिए प्रेजेंट वैल्यू। आई होप कि आपको प्रेजेंट वैल्यू गिनना आता ही है क्योंकि हमने बहुत बार टेबल बनाया, ठीक है। ऐसे ही प्रोजेक्ट बी में 200 200 600 और 1000, ये चारों प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट ऑल 4 प्रेजेंट वैल्यू सेम टू सेम। प्रोजेक्ट सी multiply 100 100 100 and 1600 with this 4 present value factor, you will get these present value 91 83 75 1093। हाँ एक और चीज, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉइंट में हो सकती है, ये प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉइंट में हो सकती है, बट मैंने पॉइंट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। अगर आप एग्जाम में नहीं लेंगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेबैक पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमको फिर प्लस माइनस करने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट डी, 0 एक साल के बाद, 0 दूसरे साल के बाद, 300 तीसरे साल के बाद, 1600 एट द एंड ऑफ 4th ईयर। तो ये चारों को ये 4 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो अगर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आपको बोला है तो पहले जितना भी इनफ्लो दिया है उसका आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू। क्या फाइंड करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू। चलो अभी हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। क्लियर। चलो नाउ मैंने सेम टू सेम टेबल यहां पे रखा है, सेम टू सेम जो अभी हमने बनाया यही वाला सेम टेबल। क्लियर। कंटिन्यू करते हैं। चलो नाउ कैलकुलेट पेबैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट ए। कीप कैलकुलेटर विथ यू, कीप कैलकुलेटर विथ यू। कैलकुलेशन तो सेम है जो आपने अभी किया था, बट प्रेजेंट वैल्यू लेके करना है। अब तक देखो मैं प्रोजेक्ट ए का आपको समझा दूं। प्रोजेक्ट ए में हमने ये 600, चलो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था 1000, याद है ना पेबैक पीरियड का फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनफ्लो। चलो इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 1000, हमने पेबैक पीरियड में क्या किया 600 200 200, तो 600 200 200 1000 हो गए ना। तो हमने पेबैक पीरियड 3 साल लिखा था याद है, बट इसमें ये नहीं लेना है, ये प्रेजेंट वैल्यू वाला लेना है। चलो टोटल करो, पहले साल में 545 प्लस दूसरे साल में, पहले साल में हमको कितना वापस मिल जाता है 545, दूसरे साल में 165 प्लस तीसरे साल में 150। डोंट ऑन ऑडियो। टोटल हमारा कितना हो रहा है, टोटल करेंगे तो ये 3 साल में हमको टोटल मिला के 860 पैसे वापस मिलते हैं, ना दिया ऑफ। टोटल हमको कितने पैसे वापस मिलते हैं 860 हो रहा है ना। चलो अभी हमको चाहिए थे कितने 1000 और हमको मिल कितने रहे 860, तो बोलो 1000 होने में अभी कितने बाकी बचे 140, 140 बाकी बचे ना। तो 140 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का कैश फ्लो बाकी है ना अभी, तो 683 इंटू 12, क्योंकि मंथ में चाहिए। तो देखो मिनिमम 3 साल तो लगेंगे ना, 3 साल तो लगे, एंड ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, नियर बार आएगा। कितने मंथ आएगा 2 मंथ्स। कैलकुलेट करो 140 डिवाइडेड बाय 683 इनटू 12, एग्जैक्ट करेंगे तो 2 मंथ्स आएगा, क्योंकि मंथ्स है तो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, पॉइंट में तो मंथ नहीं लिख सकते। इसलिए प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड है
3 years and 2 months. कितना है? 3 years and 2 months. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. प्रोजेक्ट बी का समझते हैं. प्रोजेक्ट बी प्रेजेंट वैल्यू लेके करना है. चलो, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? अगेन सेम 1000 इज इन्वेस्टमेंट. चलो टोटल करना स्टार्ट करो. इसमें पहले साल में हमको कितना वापस मिलता है? 182. सो मेक द टोटल 182 प्लस देन 165 प्लस थर्ड ईयर में आपको मिलते हैं 451. कितने मिलते हैं? 451. 182 प्लस 165 प्लस 451. 1000 नहीं हो जाना चाहिए, वो ध्यान में रखना है. 1000 नहीं हो जाना चाहिए. चलो 3 साल में 1000 नहीं होते हैं. कितना होता है? 798. ये तीनों का टोटल होता है 798. मतलब 3 साल तो लगेंगे ना पैसे वापस मिलने में. प्लस चलो कितना हुआ? 798. तो 1000 होने में कितने बाकी है अभी? तो 1000 माइनस कर दो. 202 बाकी बचे ना 1000 होने में. डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है? प्रेजेंट वैल्यू 683 इंटू 12. तो 3 इयर्स. और ऐसे कैलकुलेट करेंगे. ये 3 इयर्स इसका है, ये 3 साल लगे ना, इसका 3 इयर्स. और 4 मंथ कैसे आया? जो आपने ब्रैकेट बना है उसमें कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको 4 मंथ्स. सो 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स. ठीक है, चलो आगे जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं. प्रोजेक्ट सी. नाउ प्रोजेक्ट सी कितना इन्वेस्टमेंट है? 1300. तो 1300. चलो ये तीनों का टोटल करो. 91, 83, 75. 91, 83, 75. कितना कम पड़ेगा? 1300 में टोटल करो तो 91 प्लस 83 प्लस 75 टोटल होता है 249. 249 और 249 माइनस 1300 चाहिए ना हमको. माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कितना बचेगा? अभी 1050 अभी भी बचेगा. इतना अभी भी चाहिए. और तो उसको डिवाइडेड बाय ये लास्ट वाला 1093 से डिवाइड कर दो इनटू 12. तो देखो अभी थोड़ा कंफ्यूजन है ना. 3 इयर्स तो हुए, मिनिमम 3 साल तो लगेंगे. अभी आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा 11.5 मंथ. अभी 11.5 मंथ मतलब कितने मंथ हुए? 12 मंथ. तो कभी ऐसे लिख सकते हैं 3 इयर्स एंड 12 मंथ्स. 3 इयर्स एंड 12 मंथ लिख सकते हैं. क्या लिखना चाहिए? डायरेक्टली 4 ईयर. 12 मंथ मतलब 4 साल हो गए ना. तो इसका पेबैक पीरियड है 4 ईयर. और सेम टू सेम ये प्रोजेक्ट डी का भी सेम आंसर आता है 4 इयर्स, क्योंकि वही है. ठीक है, तो आप गिन लेना लेटर ऑन प्रोजेक्ट डी. सो दिस इज कॉल्ड पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. नाउ नेक्स्ट लास्ट सम that is called ARR. हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न गिनने वाले हैं. सो बी पेशेंट. अ मशीन विल कॉस्ट. थोड़ा चीज याद भी रखना, ये बुक का ही सम है. मोस्ट प्रोबेबली 14 नहीं है, 14 के बाद का है. मैंने नंबर शायद गलत दिया है. ठीक है. अ मशीन विल कॉस्ट ₹10,000. इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. मशीन का कॉस्ट कितना है? 10,000. हमने कोई मशीन खरीदा है, 10,000 है और उसका कॉस्ट है. It is expected to provide profit before depreciation 3,000 in the year 1 and 2 and 4,000 in the year 3 and 4, assuming a straight line depreciation and no tax. Assuming straight line depreciation. Straight line depreciation समझते हो ना? जितने साल का मशीन है डिवाइडेड बाय कर देंगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. ठीक है. What is the average accounting rate of return? क्या पूछा है? Average accounting rate of return. आगे का बाद में समझेंगे. What will be your answer if tax rate is 35? अब अगर आपका आंसर क्या होगा अगर टैक्स रेट कितना 35 है तो पहले विदाउट टैक्स हम गिनते हैं. फिर से एक बार सम पढ़ लो. अ मशीन विल कॉस्ट 10,000. याद रखना 10,000 का मशीन हमने खरीदा है. उसका प्रॉफिट हमको बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है. प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 3,000 पहले 2 साल में, 4,000 तीसरे और चौथे साल में. स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है. इसका मतलब क्या है मैं बाद में समझाता हूं अगर आप भी नहीं समझ में आया. और कोई टैक्स नहीं है. ठीक है. चलो ARR का फॉर्मूला समझ लो. क्या फॉर्मूला है? एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. ठीक है. चलो सम को समझने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा. ऐसे ध्यान से समझो ये क्या है और बहुत इजी है टेबल बनाना. ठीक है. आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड. चलो सबसे पहले कॉस्ट. और हमको कितने साल का मशीन खरीदा था? 4 ईयर. 4 साल का मशीन है ये.
चलो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हम मशीन लेंगे उस दिन को 0 बोलते हैं, एक साल के बाद को हम 1 बोलते हैं। क्लियर? जिस दिन हम मशीन लेंगे, आज सपोज, तो आज 0 है, और एक साल के बाद जब मशीन कंप्लीट होगा तो उसको बोलते हैं 1, फिर 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। तो आज, ठीक है, आज हम गिनते हैं 10,000। ध्यान से देखना हम क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्लियर? चलो पहले 0 पे हमने कितना मशीन लिया? 10,000। कोई, ये है स्ट्रेट डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट डेप्रिसिएशन। चलो अभी हमने कोई मशीन लिया है, अभी लिया, तो अभी कोई डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, मतलब बुक वैल्यू भी कितना होगा? 10,000, 0। अब समझ लो बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो प्राइस पर मशीन खरीदते हैं उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। समझो, हमने 10,000 में मशीन खरीदा और उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो बुक वैल्यू वही रहेगा। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू पे हम परचेज करते हैं। क्लियर? तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। चलो अभी पहले साल के स्टार्टिंग में 10,000 होगा, माइनस हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन। 2500। ये 2500 कैसे आया, ये आपको समझा देता हूं। देखो, मशीन कितना है? कैलकुलेटर ले दो हाथ में। मशीन है 10,000 का, यस और नो? और कितने साल का मशीन हमने खरीदा है? 4 साल। चलो कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन गिनना है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब समझते हो, हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहता है? सेम। हर साल डेप्रिसिएशन सेम। तो 10,000 डिवाइडेड बाय कर दो 4। 10,000 डिवाइडेड बाय 4 साल का मशीन है तो डिवाइड बाय 4 कर दो, यू विल गेट 2,500 डेप्रिसिएशन। चारों साल आपको कितना डेप्रिसिएशन होगा? 2,500। 2000 देखो यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर 2,500, सेकंड ईयर 2,500, थर्ड ईयर 2,500 एंड फोर्थ ईयर 2,500। ठीक है? हमको बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको। ये बुक वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ। क्यों? समझाता हूं। चलो, हम 0 साल में मशीन खरीदा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो बुक वैल्यू 10,000 सेम रहेगा। चलो दूसरे साल के फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 10,000 ही बुक वैल्यू होगा, मतलब कॉस्ट। ये 10,000 यहाँ पे चला जाएगा। चलो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2,500। तो एक साल के बाद कितना बचेगा? 7,500। तो एक साल के बाद मशीन का बुक वैल्यू इतना है, 7,500। डेप्रिसिएशन माइनस हो गया ना। चलो ये 7,500 दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड होगा, 7,500 यहाँ पे आएगा, फिर से 2,500 माइनस करो तो बचेगा 5,000। 5,000 थर्ड ईयर में जाएगा। आज का जो क्लोजिंग वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग वैल्यू होता है ना, तो 5,000, फिर से 2,500 डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू 2,500, और 2,500 यहाँ पे जाएगा तो वो ओपनिंग वैल्यू है, उसमें से और 2,500 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 0। मशीन कितना हो जाएगा? 0। हमने क्या किया? हर साल 2,500 माइनस किया तो मशीन 0 हो गया। अभी आपको इसका एवरेज करना है। किसका? बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू का एवरेज। बुक वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। बुक वैल्यू मतलब जो पैसे से हम खरीदते हैं। ठीक है? तो इसका एवरेज करना है हमको। एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसका एवरेज करो। एवरेज 10,000 प्लस 7,500 दैट इज 17,500 प्लस 5,000 दैट इज 22,500 प्लस 2,500। ये चारों का टोटल करेंगे, चारों मतलब पांचों का, ये पांचों लेना है। ये पांचों का टोटल करेंगे तो 25,000 होगा। कितना होगा? 25,000। कितना होगा टोटल? अगेन आई एम रिपीटिंग, 25,000। ये चारों का टोटल होगा 25,000। और हम पांचों का, सॉरी, हमको तो एवरेज चाहिए, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 का टोटल किया है तो डिवाइड बाय 5, तो एवरेज कितना होगा? 5,000। जागृति, जागृति, योर ऑडियो इज ऑन, प्लीज। बुक वैल्यू एवरेज होता है 10,000, 7,500, 5,000, 2,500 एंड 0। ये 5 साल का टोटल डिवाइडेड बाय 5, सो योर आंसर इज एवरेज होगा 5,000। तो आपको मिला बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट 5,000, याद रखना। चलो अभी हमको चाहिए एवरेज इनकम। एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल गया, अभी ये चाहिए एवरेज इनकम। चलो अभी हमको सब में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है, ये दिया है देखो 3,000 पहले 2 साल में, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, हाँ बिफोर डेप्रिसिएशन का है 3,000 फॉर पहले 2 साल में, 4,000 थर्ड एंड 4 ईयर में। देखो 3,000 पहले 2 साल में प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। 3,000 पहले 2 साल में, 4,000 तीसरे और चौथे साल में। क्लियर? चलो ये है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन।
हमको तो चाहिए उसमें से हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस, क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन हमारा कितना है हर साल, ये रहा ऊपर 2500 2500 2500 2500 लिख दो यहाँ पर, सेम टू सेम 2500 चारों साल में डेप्रिसिएशन है। चलो ये था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना था 3000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, योर आंसर इज 500। दूसरे साल का प्रॉफिट था 3000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया 500। चौथे साल का प्रॉफिट था 4000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया 1500। चौथे साल का डेप्रिसिएशन था 4000, सॉरी प्रॉफिट, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो चौथे साल का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। याद करो सब में ऐसा बोला है कि देयर इज नो टैक्स, तो व्हाट इज एआरआर, पहले टैक्स लेना नहीं है, टैक्स बाद में लेंगे। तो चलो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये जो प्रॉफिट आया ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको मिल गया, कितना मिला 500 500 1500 1500, टोटल करो 1500 1500 500 500 4000 हुए। हमको तो एवरेज इनकम चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 4 एवरेज आएगा 1000। ये जो प्रॉफिट आया ना एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। तो हमको दो सम पूछे, देखो व्हाट इज द एआरआर, यहाँ पे लिखा है नो टैक्स, टैक्स नहीं लेते हैं तो एआरआर कितना है। चलो अभी एआरआर का फॉर्मूला देखो फटाफट, एआरआर का फॉर्मूला क्या है नीचे, एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम कितना है हमारा 1000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 5000, जो बुक वैल्यू था वो एवरेज इनटू 100, सो योर कितना होगा एआरआर 20%। एआरआर का दूसरा नाम क्या पता है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर कितना रिटर्न मिलता है, तो 20% रिटर्न मिला। चलो अभी दूसरा सम, अगर टैक्स रेट 35% है, टैक्स रेट 35% है, तो आंसर क्या होगा। चलो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये सब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें से टैक्स क्या कर दो, अगर दिया है तो टैक्स माइनस कर दो। चलो कर दो, टैक्स कितना है, टैक्स का रेट है 35%। चलो इसका 35% होता है 175, इसका 35% होता है 175, इसका 35% होता है 525, इसका 35% होता है 525। चलो माइनस कर दो इसमें से, ये 325 325 975 975, अभी इसका एवरेज लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो एवरेज डिवाइड बाय 4 कर दो, टोटल करे एवरेज कितना आएगा 650। तो सिंपल है, यहाँ पे रख दो। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 650, एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 5000, यही सेम टू सेम इनटू 100। सो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं तो आपका एआरआर कितना होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 13%। सिंपल है, एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला है तो ये एवरेज लिया, दूसरी बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है तो ये एवरेज लिया, डिवाइडेड बाय, तो आपको क्या करना है 5000। तो दिस इज द सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड, स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड एंड एआरआर।